ابھی آپ کو خبر دیتے ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت 26 اکتوبر تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ کو بتائیں کہ سماعت بھی 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ سماعت جاری تھی۔ نواز شریف کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں۔ 26 اکتوبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 26 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے نواز شریف کی ضمانت میں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت جاری تھی اور 26 اکتوبر تک توسیع کی گئی ہے حفاظتی ضمانت میں۔ فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد علی۔ شہزاد، تفصیلات بتائیے۔ جی فاطمہ، بالکل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دونوں درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ دونوں درخواستوں کے حوالے سے اگر ہم بتاتے چلیں تو جو ضمانت تھی، حفاظتی ضمانت کی درخواست تھی، اس میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26 اکتوبر تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو ضمانت تھی اس میں توسیع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپیلوں کی جو بحالی تھی دونوں، اس حوالے سے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوران اس سماعت جو مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم تھی، اس کے سینئر وکیل اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ انہوں نے یہ استدعا کی تھی عدالت سے کہ ضمانت میں توسیع کر دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی استدعا کی تھی کہ اس کو جو ہے وہ آئندہ ہفتے کے لیے جو ہے وہ کیس کو فکس کیا جائے، لیکن عدالت نے جو ہے وہ 2 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت میں بھی توسیع کر دیا اور نیب کو نوٹس جاری کیا ہے کہ نیب کا کیا موقف ہے۔ دوران سماعت جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس بھی سامنے آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کیسز میں کچھ نہیں تھا تو اتنا ٹائم اور اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا گیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ ہمارے سامنے 2 اپیلیں زیر سماعت تھیں، نیب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ لوگ آج بھی نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں یہ موقف دیا گیا کہ ہم بالکل کلیئر ہیں، ابھی عدالت کے سامنے حفاظتی ضمانت کا معاملہ ہے۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے یہ موقف اپنایا کہ کسی کا نقصان نہیں، جیل جانے کی صورت میں صرف اور صرف ہمارا جو موکل ہے نواز شریف، انہی کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کافی سزا بھگت چکے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دوران سماعت یہ بھی استفسار کیا کہ جس طرح کہا ابھی بھی اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب کے سامنے اس معاملے کو رکھا جائے، پھر کیوں عدالت کا وقت ضائع کیا گیا۔ اگر یہ کیسز غلط دائر ہوئے تو پھر نیب آج یہ کیسز واپس لینا چاہتا ہے تو اس کا بھی کوئی رستہ ہوگا، کیسے یہ نیب یہ تمام کیسز جو ہے وہ واپس لے گا۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے وکیل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو قتل ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک شعر بھی سنایا عدالت کو اور یہ کہا کہ نواز شریف اپنی بیگم اور ماں کو ان معاملات میں جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف کو آدھا جو سزا ہے وہ آلریڈی بھگت چکے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی اپنے دلائل میں کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب ان کو سزا سنائی گئی تو بیرون ملک تھے، انہوں نے واپس آ کر سرنڈر کیا عدالت کے سامنے اور سزا بھگتی، لیکن جو ان کی ضمانت ملی تھی وہ طبی بنیادوں پر ضمانت دی گئی تھی۔ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، جس کے بعد جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر کی جو تھے انہوں نے روسٹم پر یہ اپنے دلائل دیے کہ اگر حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ان 5 کیسز میں جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 5 سالوں بعد آج نیب کو یہ چیز یاد آئی ہے کہ ان کیسز میں کچھ نہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر جو سماعت ہے اب 2 روز کے لیے عدالت نے اس کو ملتوی کیا ہے اور 26 اکتوبر کو ان ریفرنسز اور جو حفاظتی ضمانت ہے اس پر دوبارہ سماعت ہوگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل جو بینچ ہے یہی ان معاملات کی جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ نون لیگ کی جانب سے آفٹر سماعت کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ جی ابھی تک تو نون لیگی جو رہنما اور قائدین ہیں وہ عدالت سے نکل رہے ہیں، کیونکہ آج عدالت میں کافی غیر معمولی رش بھی دیکھنے میں آیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف، لیگی قائد نواز شریف اور جو سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ کوریڈور سے نکل رہے ہیں اور عدالت کے باہر متوقع ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ایک ٹاک بھی کی جائے گی اور آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے جو ہے وہ نون لیگ کا رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ اور اس وقت کیونکہ کمرہ عدالت کو خالی کرنے کا عمل جاری ہے اور تمام تر جو لوگ ہیں وہ کمرہ عدالت سے نکل رہے ہیں، تو اب متوقع ہے کہ تھوڑی دیر تک مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ اس حوالے سے ٹاک بھی کریں گے اور آج کی عدالتی کارروائی سے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ بھی کریں گے۔
ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा शहजाद। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताते चले कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज जारी थी। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह की गई है। फरीकैन को नोटिस भी जारी किया गया है। ये भी आपको बताते चले कि केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया, साथ ही साथ उनका कहना था कि ये तो अक्सर नोटिस देने पर भी नहीं आते, और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। तो आज की समाअत जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी अहम समाअत इसको गिरदाना जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी, उन सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तों पर आज समाअत जारी थी। तो नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह की गई है। इसी हवाले से फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। केस की समाअत 26 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी गई है। 2 दिन के बाद अब इस केस की दोबारा से समाअत होगी। नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ सीनियर क़यादत भी मौजूद है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आज जो मुकालमा हुआ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया, ये तो अक्सर नोटिस देने पर भी नहीं आते। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मुतमईन करना है कि अब अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। तो नवाज शरीफ आज अदालत के सामने, अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। और साथ ही साथ ये बताते चले 2 अहम रेफरेंसेस अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज जारी थी। अभी आपको खबर देते हैं, अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत 26 अक्टूबर तक उसमें तौसीह कर दी गई है। नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। तो आपको बताएं कि समाअत भी 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया केस के हवाले से आपको बताते चले कि समाअत जारी थी। नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। 26 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है नवाज शरीफ की जमानत में। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत जारी थी और 26 अक्टूबर तक तौसीह की गई है हिफाजती जमानत में। फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है शहजाद अली। शहजाद, तफसीलात बताइए। जी फातिमा, बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दोनों दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। दोनों दरखास्तों के हवाले से अगर हम बताते चलें तो जो जमानत थी, हिफाजती जमानत की दरखास्त थी, उसमें 2 रोज की तोसीह कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो जमानत थी उसमें तोसीह कर दिया। इसके साथ साथ अपीलों की जो बहाली थी दोनों, उस हवाले से नैब को नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। दौरान समाअत जो मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम थी, उसके सीनियर वकील आजम नजीर तारड़ जो है वो उन्होंने ये इस्तदा की थी अदालत से कि जमानत में तोसीह कर दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस्तदा की थी कि इसको जो है वो आइंदा हफ्ते के लिए जो है वो केस को फिक्स किया जाए, लेकिन अदालत ने जो है वो 2 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत में भी तोसीह कर दिया और नैब को नोटिस जारी किया है कि नैब का क्या मौक़िफ़ है। दौरान समाअत जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स भी सामने आए। उन्होंने ये कहा कि हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि अगर ये केसेस में कुछ नहीं था तो इतना टाइम और इतना पैसा क्यों ज़ाया किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि हमारे सामने 2 अपीलें ज़ैर समाअत थी, नैब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अदालत की मुकम्मल मावनत की जाएगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप लोग आज भी नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ दिया गया कि हम बिल्कुल क्लियर है, अभी अदालत के सामने हिफाजी जमानत का मामला है। वकील आजम नजीर तारड़ ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि किसी का नुकसान नहीं, जेल जाने की सूरत में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मुवक्किल है नवाज शरीफ, उन्हीं का जो है वो नुकसान होगा। इससे पहले भी काफी सजा भुगत चुके हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत ये भी इस्तफसार किया कि जिस तरह कहा अभी भी इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये भी कहा कि चेयरमैन नैब के सामने इस मामले को रखा जाए, फिर क्यों अदालत का वक्त ज़ाया किया गया। अगर ये केसेस गलत दायर हुए तो फिर नैब आज ये केसेस वापस लेना चाहता है तो उसका भी कोई रास्ता होगा, कैसे ये नैब ये तमाम केसेस जो है वापस लेगा। इस पर आजम नजीर तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा तो कत्ल हो चुका है। उन्होंने एक शेर भी सुनाया अदालत को और ये कहा कि नवाज शरीफ अपनी बेगम और माँ को इन मामलात में जो है वो खो चुके हैं। इस हवाले से जो है वो नवाज शरीफ को आधा जो सजा है वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं। आजम नजीर तारड़ ने ये भी अपने दलाइल में कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब उनको सजा सुनाई गई तो बैरून मुल्क थे, उन्होंने वापस आकर सरेंडर किया अदालत के सामने और सजा भुगती, लेकिन जो उनकी जमानत मिली थी वो तब भी बुनियादों पर जमानत दी गई थी।
आजम नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, जिसके बाद जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर की जो थे उन्होंने रोस्टम पर ये अपने दलाइल दिए कि अगर हिफाजती जमानत में तोसीक कर दी जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। इन 5 केसेस में जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 5 सालों बाद आज नैब को ये चीज याद आई है कि इन केसेस में कुछ नहीं। तो इस हवाले से जो है वो अब तमाम तर जो समाअत है अब 2 रोज के लिए अदालत ने इसको मुलतवी किया है और 26 अक्टूबर को इन रेफरेंसेस और जो हिफाजती जमानत है इस पर दोबारा समाअत होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल जो बेंच है यही इन मामलात की जो है वो समाअत करेगा। जी अच्छा, ये बताइए कि नून लीग की जानिब से आफ्टर समाअत कोई बयान सामने आया है? जी अभी तक तो नून लीगी जो रहनुमा और कायदीन है वो अदालत से निकल रहे हैं, क्योंकि आज अदालत में काफी गैर मामूली रश भी देखने में आया था। और इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीगी कायद नवाज शरीफ और जो सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो कॉरिडोर से निकल रहे हैं और अदालत के बाहर मुतवक्के है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से एक टॉक भी की जाएगी और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से जो है वो नून लीग का रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। और इस वक्त क्योंकि कमरा अदालत को खाली करने का अमल जारी है और तमाम तर जो लोग हैं वो कमरा अदालत से निकल रहे हैं, तो अब मुतवक्के है कि थोड़ी देर तक मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो इस हवाले से टॉक भी करेंगे और आज की अदालती कार्रवाई से लोगों को जो है वो आगाह भी करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद, अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताते चले कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज जारी थी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह की गई है। फरीकैन को नोटिस भी जारी किया गया है। ये भी आपको बताते चले कि केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया, साथ ही साथ उनका कहना था कि ये तो अक्सर नोटिस देने पर भी नहीं आते और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। तो आज की समाअत जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी अहम समाअत इसको गिरदाना जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी, उन सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तों पर आज समाअत जारी थी। तो नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह की गई है। इसी हवाले से फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। केस की समाअत 26 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी गई है। 2 दिन के बाद अब इस केस की दोबारा से समाअत होगी। नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं, उनके साथ सीनियर क़यादत भी मौजूद है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आज जो मुकालमा हुआ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया, ये तो अक्सर नोटिस देने पर भी नहीं आते। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मुतमईन करना है कि अब अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। तो नवाज शरीफ आज अदालत के सामने, अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। और साथ ही साथ ये बताते चले 2 अहम रेफरेंसेस अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज जारी थी।